Started. So, Kullar bhai, welcome to my podcast. Thank you so It's much. I pleased to. it's, This is my it's so much. first Yeah, podcast in life, so yeah, I'm looking forward to it. Especially with you, we have been friends for many years now. So yeah, it was we know each other. 9 when I joined boys high school here. Yes, yes, yes. So that time we would have been six. Okay, I will set the context. Hmm. So, Arpit Kullar is my school time friend, and we are means he's one of very close friend and buddy who mentors me also on many of the life's decision. So he is a graduate from IIT BHU and MBA from IMT Ghaziabad, and now he stays in Riyadh, Saudi Arabia, from quite a long time. So I miss his company, which we used to have earlier. Lots of frequent meetings each other. So the purpose of this channel is that I am collecting stories of my knowns who have so many years of corporate experience, and they can, based on their life lessons, we can draw some valuable tips for younger generation, especially. And it's just a casual discussion, both in Hindi and English. So we will begin. Okay. Right. So Kullar bhai, first of all, how you find life in Saudi Arabia? कैसा लग रहा है? Yeah, Rishabh bhai, so I've been here for almost 8 years now. So when I was supposed to come here, there was general impression about Saudi Arabia that it might be a very restricted country. The rules might be very strict, and there might be severe punishment for even small frauds. I mean, Hmm. theft or some mischief. You might Okay. very severe punishment. ऐसा कुछ है नहीं. Uh, since Yes. in here, actually this country started being transformed. मतलब उससे पहले भी 10-15 साल से ट्रांसफॉर्मेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. तो यहाँ पे मीन्स दिस कंट्री इज नाउ एज मॉडर्न एज यू कैन अज्यूम एनी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री. Hmm. एंड ऑल्सो यू आर फ्री टू मतलब सारी चीज़ें मिलती हैं. खाने पीने का, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, घूमने फिरने की. ऑल्दो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि वी डोंट गेट टेम्पल्स. तो यहाँ पे Hmm. एक, Hmm. Hmm. but otherwise you can party, but within your circle you can do anything within your community. So we have a friend circle, uh, community from like-minded people from India. So हम लोग मिलते हैं Yes. weekend पे, Yes. फेस्टिवल भी मनाते हैं साथ में. तो मतलब इट्स बीन अ गुड जर्नी सो फार. Yeah. अच्छी लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप भी हैं जो लोग यहाँ से वापस गए, उनसे भी टच में है. तो या मतलब वी हैव बीन डूइंग वेरी वेल. मतलब इन टर्म्स ऑफ Okay. वी आर नॉट finding it very odd or very that we are Hmm. very strict. So I agree with you. I Hmm. think Saudi में in last 10 years there has been rapid modernization. Correct, correct. और सऊदी मीन्स अर्लियर जो मतलब अब तो काफी मॉडर्न सिटी. रियाद तो कैपिटल है भी, और किसी भी कंट्री में कैपिटल तो वैसे भी Hmm. अच्छी होती है. मतलब मॉडर्न एमेनिटीज होती हैं, लाइफ स्टाइल अच्छी होती है, Hmm. फूड एंड ऑल. एंटरटेनमेंट, आई एम नॉट श्योर, एंटरटेनमेंट मॉल्स वगैरह तो है ही वहाँ पे. मॉल है, अभी मूवीज भी चालू हो गए थे पिछले 3-4 अच्छा. थिएटर्स ओपन हो गए थे. ओह, तो इंटरेस्टिंग. हाँ, हिंदी मूवीज भी लगती है बट जनरली ओके. साउथ इंडियन, क्योंकि साउथ अच्छा, इंडियन. सऊदी में मतलब वहाँ के पब्लिक जो है हिंदी समझ लेती है कि कैसा है? हाँ, जैसे यहाँ पे बहुत सारे तेलुगु स्पीकिंग मतलब हैदराबाद से लोग हैं, आंध्र प्रदेश से, हम्म. बहुत सारे केरला के लोग हैं, कर्नाटका के लोग हैं. तो मतलब फ्रॉम हम्म. मेनली व्हेन यू टॉक ऑफ केरला एंड आंध्र प्रदेश, दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर मे बी 40 years.
जो उनकी कम्युनिटी है, तो दे आर वेल वर्स्ड इन हिंदी। उसके नहीं अलावा नहीं, सऊदी के लोग मैं कह रहा हूँ, सऊदी के लोग साउथ समझ पाते हैं हिंदी? पीपल डोंट स्पीक, द लोकल साउथीज दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। अच्छा, वो दे उनकी अपनी लैंग्वेज है। they speak English, although not very fluently, but राइट। in ओके। organizations, ओके। English is the mode of communication with expats, and राइट राइट। हाँ, तो वो तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, वर्ल्ड वाइड ही इंग्लिश काफी कॉमन है एक्सपेट ऑफिसेस में। और मतलब एक दो चीजें इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगा, सिंस यू आज हम्म। कैसे चेंज हो रहा हम्म। है। हम्म। माइट हर्ड ऑफ रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही हम्म। प्लेइंग हाँ हाँ हाँ। फॉर अ सऊदी क्लब, राइट? ओके, इंटरेस्टिंग। नेमार जूनियर मींस द ब्राजीलियन प्लेयर। अच्छा, आई थिंक सऊदी में पहले टूरिस्ट वीजा भी नहीं होता था शायद, नाउ दे आर ओपनिंग। Yes, they have started tourist visa as well. So, ओके। although I have not, means I haven't known anyone who has availed this visa, but it is, नो बट दे आर, मींस अर्लियर इट वाज नॉट इवन पॉसिबल आल्सो। हाँ, मतलब the बिजनेस वीजा only होता था, only बिजनेस tourism ऑफिस was के काम से। only tourism was the religious tourism, जो यहाँ पे हर साल होता है हज। अच्छा हाँ, वो तो अलग है, हज रिलीजियस तो अलग है, मींस जनरल टूरिज्म आई एम टॉकिंग। ओके। yes, हाँ, तो आई थिंक ठीक है। एक वहाँ पे कोई जगह है अल, अल वो कोई हिस्टोरिकल साइट्स है, अल हिस्टोरिकल। अल उला, जैसे मतलब हाँ आई थिंक। अल उला, जो कि जॉर्डन में एक पेट्रा करके जगह है, हाँ हाँ, पेट्रा हाँ। विच इज वेरी सिमिलर। तो वहां पे भी ऐसे स्टोन्स, मतलब ऐसे रॉक्स फॉर्मेशन है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, मे बी ड्यू आई टू हैव सीन पिक्चर्स, या काफी इंटरेस्टिंग है, एंड यू आर राइट, पेट्रा से थोड़ा सिमिलर है। पेट्रा इज मे बी यू हैव बीन देयर? क्या। हैव यू बीन देयर? हैव यू बीन या देयर? आई हैव बीन देयर, आई थिंक 5 years बैक, तो उस समय उतना ओके। कमर्शियलाइज नहीं हुआ था, अभी सुन रहे हैं कि बहुत अच्छा। कमर्शियलाइज कर रहे हैं उसको। हाँ, तो नहीं ऐड आने लगा है, मैं तो ट्रैवल मैगजीन, कॉन्डा नेस्ट ट्रैवलर और आउटलुक ट्रैवलर तो मेरी मतलब रेगुलर ही पढ़ता हूँ। हाँ, मतलब अगर मैं लेकिन यहाँ रेडियो चैनल सुबह सुबह, तो उस अलूला का प्रमोशन, तो आउटलुक ट्रैवलर तो है ही, हाँ और आई थिंक आई गो थ्रू दिस कॉन्डा नेस्ट ऑल्सो, एंड सो उसमें आ रहा था ऐड, उसमें आया था इस प्लेस का ऐड, हाँ। आई थिंक इट्स गुड। पोटेंशियल है, काफी पोटेंशियल है, अनटैप्ड एरिया है, और और थोड़ा काफी unique, लैंड साइज भी बड़ा है, लैंड साइज बड़ा है। काफी यूनिक सा वो है। हम्म। और अच्छा, दूसरा पेट्रोल कितने का है वहां पे इंडिया पेट के कंपैरिजन में? रुपीस में, इंडियन रुपीस में। देखो, एक दो वर्जन है यहाँ पे, एक थोड़ा प्योरिटी जिसकी ज्यादा है, और एक लेस हाँ प्योरिटी, तो उसको मतलब रियाल में 2.18, तो मेरे ख्याल से आई थिंक 50 रुपीज के अराउंड बैठता होगा। हाँ, 50 हुआ, राइट। बट जब मैं यहाँ आया था 8 साल पहले, तो वो समझ लो मे भी 15 रुपए के बाद इन्होंने, अच्छा, तो मतलब काफी चेंज आ गया प्राइस में। ओके। गवर्नमेंट ने ऑयल रेवेन्यू के ऊपर मतलब काफी राइट। पिछले अच्छा, सही है सही है। मतलब वो कहते हैं ना वहाँ तो भाई फ्री है। नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि दे वांट टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम ऑयल। यस यस तो यस। ये नो आई नो, वो एक प्रोजेक्ट भी तो चल रहा है, नियोम, नियोम प्रोजेक्ट यहाँ काफी बड़ा। यहाँ पे गवर्नमेंट का एक विजन 2030 करके प्रोग्राम है। हम्म। उस विजन 2030 में इनकी पॉलिसी में ये है कि दे वांट टू डेवलप न्यू सेक्टर, रेवेन्यू फ्रॉम न्यू सेक्टर्स लाइक, यस यस यस। ठीक है, आईटी, एंटरटेनमेंट, तो कई सारे हैं, इवन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर भी है उसमें, तो बहुत सारे सेक्टर है विच आर नॉन ऑयल। दे वांट टू यस रेवेन्यू शेयर फ्रॉम दो सेक्टर्स, और यस। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना चाहते हैं कि दूसरे सेक्टर्स में। तो इट्स राइट। पुश, देयर इज अ बिग मैसिव पुश फ्रॉम द गवर्नमेंट उसी प्रोजेक्ट्स में, मतलब उसी विजन में, एज यू जस्ट मेंशन नियॉम, Yes, yes. They have a huge budget for all this, big budget. नियॉम सिटी, हाँ, ऑल्दो दे हैव Mm. बिकॉज़ इट वाज वेरी Hmm.
very massive project. I don't know how smoothly it is going, but yeah, NEOM का जो ओके। line which was supposed to be a 170 kilometer, अभी तो that टेलर डाउन हो गया है, अभी थोड़ा is, टाइम लगेगा। हम्म। I think few kilometers now. यस यस यस। It's a very I know many of my friends who are working on that project, and I have some idea about that. very अच्छा प्रोजेक्ट है। futuristic, हम्म। very futuristic हम्म। sort of a city that they are planning. ओके। So apart from this, other than Saudi, I think you got the chance to travel because you have that advantage ना कि थोड़ा अब लोकेशन तुम्हारी पहले ही टूवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ यूरोप साइड हो गई है, तो हाँ वहां से तो डिस्टेंस भी कम है। हाँ। तो यहाँ तो यहाँ से हम्म। यूरोप इज ए क्लोजर डेस्टिनेशन. इट्स इजी टू एक्सेस यूरोप. तो ओके। पिछले 2 साल में मेरी ट्रिप्स थी हाँ यूरोप हाँ। गया हूँ. कहाँ कहाँ घूम लिए? मैं यार एक बार तो लास्ट ईयर आई वेंट टू स्विट्जरलैंड एंड इटली. ओके ग्रेट। या अराउंड I 50 remember you said about this lake Como. लेक. What is? लेक वो है, लेक कोमो. हाँ कुमू। वेरी कोमा। नहीं कुमू क्या? क्या वर्ड है? कोमो कोमो. हाँ लेक कोमो काफी फेमस है। हाँ, इट्स अ वेरी लेकिन लेक. और एक्चुअली स्विट्जरलैंड देयर आर मेनी लेक्स दे आर वेरी सीनिक. ये लेक कोमो जो बॉर्डर पे आती है स्विट्जरलैंड और, अच्छा। तो इट्स इन द ऑल्दो इट्स पार्ट ऑफ इटली आई थिंक. कुछ पार्ट शायद उसका Maybe right, right. I was reading somewhere, then I saw that this hero, Hollywood hero, okay, जो ये काफी जॉर्ज क्लूनी, he अच्छा. has got that some mansion in Lake Como, means on the shore. So there were some photos also. I हाँ, saw that. जैसे हाँ वहाँ पे है मतलब कुछ कुछ. हाँ। एक्चुअली एक चीज और बताऊं इंटरेस्टिंग, जो वहाँ पे पार्क्स होते हैं ना उनको हम्म। विलास बोलते हैं फॉर सम रीजन. तो आई थिंक इन देयर लैंग्वेज दे कॉल दोस पार्क्स एज विलास. तो बहुत अच्छे अच्छे पार्क। पार्क पार्क। अच्छा। लेक के किनारे हाँ। ब्यूटीफुल पार्क्स हैव बीन बहुत सारे मेंटेन. तो नहीं तो मैंशंस भी तो होंगे ना पीछे, बंगला बंगला नेचर टाइप का। भी है वहाँ पे, बट क्राउडेड एरिया है. काफी लोग घूमने. हम्म। अच्छा है वहाँ. हाँ, ये जाना चाहिए एक्चुअली। इंडिया से ये वीजा वीजा का चक्कर बड़ा है, वरना मतलब प्लान बनाता और कि थोड़े इनको थोड़ा कुछ इजी करना चाहिए, वीजा ऑन अराइवल टाइप का कुछ। तब तो इटली इटली घूमा जाए यहाँ से। नहीं बनता. वही है, I mean, इंडिया में लोग इतने हैं कि दे वांट टू बेबी कंट्रोल अच्छा वो इतना ओवरऑल. थोड़ा इतनी जल्द चाहते नहीं इतने लोग, मतलब पैसा उनको चाहिए नहीं क्या कमाना? या बट आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया. मतलब अगर इफ दे कैन. So I think they can do it. Maybe 15 days kind of visa on arrival facility लाना चाहिए. This is a good. India is a very strongly growing economy. और इंडिया में अभी एक सेगमेंट है, टॉप टॉप 1% भी कह सकते हो या टॉप 3% कह सकते हो। तो टॉप 3% भी अगर 150 करोड़ की आबादी में 4.5 करोड़ हो जाता है, जो हम्म. कि मतलब ह्यूज स्पेंडिंग पावर है जिनकी। हम्म. और 4.5 करोड़ तो अच्छी खासी यूरोपियन कंट्रीज की तो आबादी ही होती है, मतलब फ्रांस और ये यूके। करेक्ट. तो आना चाहिए वीजा ऑन अराइवल टाइप का तो लाना चाहिए। अब कई कंट्रीज इंडिया से अब क्या सिस्टम आ रहा है ना, जैसे दुबई, इनफैक्ट आई थिंक टर्की, कई कंट्रीज में तो ये आ गया कि आपका यूएस वीजा अगर है 10 ईयर, मतलब यूएस वीजा वैलिड है तो आप वीजा ऑन अराइवल है आपका। हाँ हाँ, मैं अभी इस साल टर्की गया था जस्ट. हाँ अभी गया हूँ. तो यू आर करेक्ट कि अगर हाँ। यूएस वीजा है तो आपको टर्की का वीजा 2 दिन में ऑनलाइन. यू हम्म। डोंट नीड टू नहीं एक, हाँ टर्की में शायद ऑनलाइन है, ई वीजा है शायद, ई राइट वीजा. हाँ। इफ यू हैव अ वैलिड यूएस वीजा और अ यस वैलिड यस। टर्की वीजा, सो एंड देन आई थिंक दुबई में तो ऑन अराइवल ही है शायद, आई गेस। कहाँ पे? और दुबई में। दुबई में हाँ, मतलब फॉर ऑल जीसीसी रेजिडेंट्स. फॉर सऊदीज आई नो. मतलब आई हैव अ नहीं वीजा. नहीं, फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव आई थिंक ये वीजा ऑन अराइवल है अगर यूएस वीजा है आपके पास। तो कई हम्म। चीज में दे विद दिस वीजा ऑन अराइवल आई एम श्योर कि दुबई में तो होगा.
वहाँ पे आए। अच्छा, ओके। तो मतलब विच प्लेस यू फाइंड गुड, टर्की और इटली और स्विट्जरलैंड, विच वन इज फेवरेट? और मालदीव्स आल्सो, आई रिमेम्बर यू वेंट टू मालदीव्स। Which one is good? फोर्स ट्रैवल, क्योंकि कोविड टाइम में वी कुड नॉट कम डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया टू सऊदी, तो Yes, वाइफ yes, yes. को आना था, तो हाँ, वो भी था। बट हाँ, मतलब स्विट्जरलैंड इन इट्स ओन राइट, मतलब इट्स वेरी वेरी सीनिक। तो स्विट्जरलैंड में लाइक leave alone my the patriotism we should have for India and all, but Switzerland is really beautiful। और उन्होंने मेंटेन भी किया, जितना वो खूबसूरत भाई है। पिक्चर स्टाइल का एकदम, जैसे पिक्चरिस्क ब्यूटी की हर चीज जो आप सीनरी है। जो आप कैलेंडर में मान लीजिए सीनरी देखते हो ना बचपन से, तो वो वैसा राइट, है दिल्ली में वहां पे। परफेक्ट है, वही मैंने जितना देखा, एकदम परफेक्ट ब्यूटी। और वेदर भी बहुत प्लेजेंट रहता हम्म। है। दिन ओके। लंबा, समर्स में जाइए आप तो दिन बहुत लंबा होते हैं, मतलब 5-6 बजे सनराइज हो जाता है, और रात को 9:30 पौने 10 तक आपको सनराइज मिलेगा, तो बहुत टाइम है आपके पास घूमने के लिए। फुल हम्म। वेदर है, राइट। ये सारे बेनिफिट्स हैं। ओके। मतलब वहां पे जाइए, बढ़िया। साफ सफाई है ही है, ट्रैवल के लिए बहुत स्मूथ है, ट्रेन्स वगैरह बहुत टाइम पे चल। लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव कि इंडिया में बहुत कुछ है घूमने का, इंडिया में बहुत सुंदर सुंदर है। मतलब डाइवर्सिटी जो है, आप कहो हम्म। इंडिया में। और इंडिया लोग इतना सही से आई थिंक एक्सप्लोर कर नहीं पाते हैं, जैसे अंडमान वगैरह है, या आप लद्दाख है, या अरुणाचल में तवांग अवांग हो गया, लक्षद्वीप हो गया। सही। इतना लोग एक्सप्लोर कर नहीं पाते हैं। दे आर ऑल्सो परफेक्ट ब्यूटी। हाँ। मैं पैंगोंग सो लेक गया हूँ, हम्म। और लेह के पास, हम्म। मतलब मुझे स्विट्जरलैंड ही लगने लगा वो कुछ टाइम के बाद, तो वो जिस तरह की लेक, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर। हाँ, मतलब हाँ, बस वही है, थोड़ा सा उसको मेंटेन करें, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा चाहिए, हाँ। इट वुड इंफ्रा, बी हाँ। मे बी और एज। कनेक्टिविटी थोड़ी बेटर करनी पड़ेगी। एक्चुअली पैंगोंग सो की लेक की तो रोड, मतलब फ्रॉम ले टू पैंगोंग सो इज ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स, बट द रोड इज परफेक्ट। अच्छा। बट ये कि वो काफी हाइट पे भी है, इट्स अराउंड आई रिमेम्बर 4000 मीटर्स हाइट। तो हम्म। काफी, मतलब टेरेन तो काफी टफ है ही, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह फिर थोड़ी कम हो जाती है इस साइड पे। और रोड तो अच्छी है, लेकिन इट अपने माउंटेन्स, इट हिमालय है वो सॉफ्ट रॉक है ना, तो वहाँ पे रोड्स बनाना भी इतना इजी नहीं है। जो कई यस। माउंटेन हार्ड है, वहाँ पे इजीली बन हाँ, सकते हैं। आई थिंक स्विस वगैरह तो आई थिंक हार्ड रॉक्स हैं, मे बी। हिमालयाज आर, कल ही पढ़ रहा था अपने बच्चे की बुक में कि हम्म। हिमालयाज आर दी न्यूएस्ट माउंटेन, हाँ, न्यू माउंटेन रेंज है। सो दे हैव सॉफ्ट रॉक्स आल्सो। हाँ, इंडिया में शायद ये जो हमारे विंध्या विंध्या रेंज है और नीलगिरीज, ये ओल्ड है। विंध्या रेंज इज वेरी ओल्ड ओके। इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एज। अच्छा, ओके। Let's move something to new thing. So, any favorite book of yours? I don't read too much books. Let me try to think something. Uh, एक्चुअली ये मैं प्रॉब्लम नोटिस कर रहा हूँ अपने सारे ही फ्रेंड्स में, कि रीडिंग तो मेरे कोई भी दोस्त नहीं कर रहा है, लग रहा है। नहीं, सही है, क्योंकि सब मैंने लोग इतना बिजी है जॉब में। यू आर राइट, मैंने बुक्स बहुत खरीद लेता हूँ। मैं जब भी इंडिया भी जाता हूँ कभी कभी, तो एक दो बुक्स लेके आता हूँ, जैसे राइट। आई और एक एटॉमिक हैबिट्स, दो बुक्स मैंने खरीदी जब लास्ट। एटॉमिक हैबिट्स फेमस है। वैसी वैसी पैक्ड है। एक मैंने लाइफ बायोग्राफी। एक तो एक ये भी मुझे एक प्रॉब्लम लगती है कि रीडिंग में, कि लोग सबसे ज्यादा अभी कुछ 10-15 बुक्स हैं, वही लोग पढ़ रहे हैं सारे लोग। हाँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ये एक और प्रॉब्लम चल रही है, वर्ल्ड वाइड चल रही है, इंडिया में चल रही है, कि ये साइकोलॉजी ऑफ मनी, एटॉमिक हैबिट्स, और ये डेल कार्नेजी की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, पब्लिक स्पीकिंग कार्नेजी की, ऐसे कुछ अगर आप 20 बुक्स अगर आपने उसमें निकाल लिया ना, इकिगाई और ये सब, तो जिसको देखो उसने कहा बस मैंने इन्हीं में से पढ़ा है। इसके बियॉन्ड बहुत कम लोग गए हैं। मुझे मुझे लगता है आप जब गूगल पे सर्च करने जाते हो ना, गुड बुक्स फॉर हाँ, तो दे कम, तो वही ऑल दीज वही बुक्स विच, रिकमेंड करता है। these books are in top 100 of this Amazon. So इसका क्या हो रहा है ना, कि एल्गोरिदम ही इस तरह हो गया है कि वही सर्च में आता है सबसे ज्यादा।
So, यही है। बट हम्म, एक है, मतलब मैं ऑटोग्राफी बायोग्राफीज लाइक करता हूँ। एक बुक मुझे याद है, मैंने प्रियंका चोपड़ा की पढ़ी है, अनफिनिश्ड। तो अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग। प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड बायोग्राफी है। उसमें वो मुझे अच्छी लगी क्योंकि वो लड़की जो है, मतलब शी इज फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, और शी इज ब्रेकिंग कन्वेंशनल बैरियर, जो वहाँ इंडियन राइट। सोसाइटी माइंडसेट है, यस। तरीके से लड़कियों को रहना चाहिए। वो ऑल्दो उसका फैमिली सपोर्ट भी है, बट शी इज ब्रेकिंग दैट स्टीरियोटाइप। यस, यस, ऑफ कोर्स शी इज वेरी She's a सक्सेसफुल। bold हम्म, character by birth. She's a bold, ओके। and she has been following her dreams without shame. मतलब she is not fearful to. She's फियरलेस, फियरलेस। correct. So हम्म। he's trying ये to कुछ ये क्वालिटीज start मुझे that. लगता है लोगों को अपनी लाइफ में रखना चाहिए। जो ये फियरलेस होता है, करेजियस होता है। मैंने यू गॉट द चांस टू गो थ्रू माय बुक? Yes, I have read your book, not fully, but almost 80%. यस, Yeah, यस। when I was in सो India, so उसमें भी मैंने इसी टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस किया है कि यू नीड टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स एंड listen to your inner voice, inner energy, or uh, be little bit fearless. Be fearless actually. Follow your inner calling. तो हाँ, हमारे को थोड़ा सा ऐसा सिखाया जाता है स्टार्टिंग से कि आप फियरलेस मत बनो, फियरफुल रहो थोड़ा। वही अपनी जो सोसाइटी है यार, हम लोग जो हम्म, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन या ग्रैंड फादर्स की राइट। जनरेशन, वी वर जस्ट स्पेंडिंग द टाइम टू manage our day to day expenses, yeah, just so that our life can go smoothly. So वो mindset धीरे धीरे as we are becoming more affluent in यस, society, आई एग्री। वो change हो ये रहा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ ये एक प्रॉब्लम थी, मतलब, और प्रोबेबली विद ग्रोइंग इकोनॉमी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। हाँ, तो यार ना अभी देखो, हम्म, नए जो नए youngsters हैं, they have so many जेन different जी, options जेन जी। to means make a living, so they don't rely on this uh, यस, of professions basically. यस, यस, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ मनी या जॉब मॉडल। Correct. So yeah, यस, they are changing. They are taking more risk. Hopefully, yeah, we are growing, ओके। changing as सो a. एनी फेवरेट मूवी और सीरीज ऑफ योर्स? Yeah, the movies also. बहुत ज्यादा नहीं देखता हूँ. नहीं, नहीं, एनी मीन्स टॉप वन और टू ऑफ Something that योर्स? stayed with me, एक तो तारे जमीन पर, which I, ओके, क्योंकि see now, means at least we are in that age of parents, right? तो उस मूवी का एक मैसेज जो मुझे लगता है कि हाउ टू बी ए नाइस पेरेंट, मतलब आप ओके, हाँ, बच्चे को इग्नोर करोगे तो मतलब जैसे मूवी जब स्टार्ट होती है तो दे द पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, द फादर स्पेशली इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन द सन। ओके, तो ओके, हाँ, सो दोज थिंग्स, दोज मिस्टेक्स कैन बी अवॉइडेड। उसके बाद उस मूवी में ये भी मैसेज है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज द रोल ऑफ अ गार्जियन, ओके। गुड मेंटर इन अच्छा, समवन्स। आई हैव नॉट सीन दिस मूवी बट आई तारे थिंक जमीन पर या अच्छी, बहुत बहुत पॉपुलर मूवी है इसमें। या आमिर खान की ना? यंग चाइल्ड आर्टिस्ट है, उसका नाम मुझे नहीं है। राइट। तो बहुत पॉपुलर मूवी है। आई हाँ, बिलीव हाँ, ऑफ गेट अ कोर्स मैंने चांस, देखा नहीं है समय। यू विल एंजॉय। ओके, दैट्स गुड। और एक और स्वदेश मूवी अगर मैं बोलूँ दूसरी, हाँ, स्वदेश आई हैव सीन। स्वदेश, हाँ, वो भी बहुत अच्छी है। कि खासकर ओके। बिहार में तो नहीं, आई थिंक दैट्स अ गुड मैसेज। हाँ, तो yeah, तो both movies have very good message, और हम्म, एक्टिंग ऑल्सो गुड स्टोरी लाइन। तो ये मूवीज बहुत अच्छी थी। अभी और भी हैं बहुत सारी, बट जस्ट कैन नॉट। नहीं, नहीं, आई थिंक या तो तुम्हारा अच्छा, एक्चुअली मेरे को तो कुछ ठीक है, मतलब ये सम होम, मतलब स्वदेश मैंने बहुत पहले देखा था। बट इट्स अ गुड मैसेज, वही नासा से वापस आ जाता है ना। करेक्ट। हम्म।
नहीं, बहुत जरूरत भी है इंडिया को वापस उसी डायरेक्शन में कि सारे लोग जो बाहर से भी लोग, काफी लोग मुझे लगता है कि वापस आके इंडिया को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ मतलब वही उस मूवी में दिखाया है कि डिस्पाइट दी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस और लिटिल हम्म सपोर्ट गवर्नमेंट, हम्म। वापस आके खुद से ही कुछ अपने विलेज के लिए करता है, जो कि राइट। पॉसिबल नहीं है, मे बी इट्स बीइंग स्लाइट पर, हाँ, नहीं कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। बट मतलब गवर्नमेंट कैन डेफिनेटली डू समथिंग, स्पेशली नाउ कि अभी बाकी कंट्रीज में गवर्नमेंट्स आर बिकमिंग मोर हॉस्टाइल टुवर्ड्स एक्सपैट, हॉस्टाइल बाय मीन दे आर हम्म प्रेफरिंग देयर वेस्ट में हो रहा है ये, स्पेशली अभी वेस्ट में स्टार्ट हुआ है West थोड़ा। में, और इवन आई थिंक इन many countries at the मैनी कंट्रीज, यस। encourage or promote their locals towards यस यस यस। that. So ओके। this is a important thing कि अपने जो टैलेंट पूल बाहर है उसको भी टैप किया जाए और इंडिया के लिए राइट राइट। वी कैन डू बेटर। ओके। सो अगर इफ गिवन द चांस और तुम्हें टाइम मशीन में 25 years पहले भेज दिया जाए, तो व्हाट्स योर मैसेज टू यंगर सेल्फ ऑफ योर्स, कि व्हाट यू वुड लाइक टू डू डिफरेंटली, एनीथिंग, वन थिंग। 25 साल पहले, 30 साल का था 20 साल, हाँ 25 साल पहले, हाँ या 20 साल पहले, चलो 20 साल, हाँ। मतलब हाँ, हाँ मतलब एटलीस्ट इफ आई थिंक व्हेन वी वर स्टार्टिंग आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन। जस्ट न्यू टू जॉब्स, तो यार मतलब मुझे एनीथिंग, मतलब ऐसा कभी कुछ मतलब टाइम मशीन से लगता है कि कुछ मुझे पीछे जाके मैं ये चीज चेंज कर दूं, ऐसा कुछ दिमाग में आता है कभी? हाँ यार मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो लगता था कि गलत कर दी या अच्छा। चाहिए वैसे करना चाहिए, तो मतलब जो मैं मुझे भी लगता है कर काफी सकता कठिन हूँ। होता है, लेकिन इस तरह की एनालिसिस करना बहुत कठिन होता है कि ये ऐसा क्या, मतलब करते और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। हाँ, मतलब अभी एक चीज जो मुझे लगती है, जो मुझे कई बार लगता है कि मुझे शायद करनी चाहिए थी, तो मैं भी मुझे पहले ही बाहर जाके, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी पेट्रियोट, हम्म। लगता है बाहर जाके मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो अच्छा। ओके। और हाँ नहीं, ठीक है, दूसरा बाहर जाके तो इन पढ़ाई जनरल, करना चाहिए। हम्म बोलूँ तो मुझे लगता है रिस्क लेने चाहिए थे लाइफ में, मतलब विदाउट राइट राइट। अबाउट, डोंट बी सेफ कि अ, मेरा ये काम करूंगा, ये जॉब मतलब अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो मेरी जॉब चली जाएगी या माय सेविंग्स विल बी यूज्ड, विल बी हम्म ओवर, जस्ट गो टेक रिस्क, हम्म। क्योंकि इवेंचुअली जो आपने वो स्टेप्स लिए उस टाइम पे पे बैक। मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा मिथ ही है जो माइंड में है कि आपकी जॉब वो कुछ हो जाएगा करियर को। आप अगर ब्रेक ले लोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, 1-2 साल बाद दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मतलब वी आर सो, बट यू विल हैव दैट सेटिस्फैक्शन कि मतलब मैंने वो जो मैं करना चाहता था, आई आई ट्राइड, और मेरे को कुछ अब रिग्रेट नहीं है किसी बात का। हाँ मतलब रेजिलिएंट ह्यूमन बीइंग्स एज अ रेस आर सो रेजिलिएंट, हम्म। जो चीज होती है ना देन यू फेस इट। इनफैक्ट। हम्म हम्म। तो वो है कि आपको जब सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस आते हैं जैसे, तो देन यू ऑटोमेटिकली चेंज योरसेल्फ एंड यू समहाउ मैं एक दो आर एबल एग्जांपल्स टू कोट फील। करता हूँ। एक दो एग्जांपल्स में माइंड में है, मतलब फैमिली से ही है। हम्म तो ये हुआ कि मतलब जैसे वी स्टार्टेड विद जॉब, हम्म बट someone wanted to try for IAS and then prepared for UPSC for 3 years। हम्म तो 3 साल में जब नहीं हुआ, फाइनल वगैरह हो गया इंटरव्यू, लेकिन फाइनली कन्वर्ट नहीं हुआ। हम्म देन शी जॉइंड अगेन बैक इनटू जॉब, हम्म और विद इन 1 year अगेन उसकी जॉब और मेरा पैकेज सेम ही हो गया। हम्म। तो ये चीजें हैं, ऐसा हाँ इतना नहीं है कि कोई बहुत मेजर कुछ हो जाएगा कि आप कॉर्पोरेट तुरंत ज्वाइन नहीं किए कॉलेज के बाद से तो कुछ हो जाएगा, जैसा कि बताया जाता है, माइंड में आता है। हाँ, ये मुझे याद है कि उस टाइम पे ऐसा लगता था किसी को देख के, अरे यार
वो इतना कमा रहा है, मेरा दोस्त वो इधर यहाँ घूम रहा है, वहां घूम रहा है। सोशल मीडिया का हाँ, बहुत, फेसबुक राइट, पोस्ट तो देख के लगता था यार कि वी विल मिस आउट, हमें ये राइट। उनके साथ ही चलना है। बट हाँ, अगर आप दिल में कुछ है तो यू शुड गो विद दैट, अपने आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड डू दैट। तो ये है कि हम्म। बी मोर रिस्क टेकिंग, तो द मैसेज इज दैट डो बी फियरलेस, है ना? ऐसा ये यू आर सेइंग? बी फियरलेस, डोंट वरी too much about the हम्म, consequences, because every day life will, with time, with age, life will become more difficult. So although हम्म, आज नहीं कल कर लेंगे, 5 साल कर लेंगे, but फिर आता नहीं वो टाइम वापस। the time will be never this हम्म, year. मतलब circumstances can become, very high chances are that it may become more difficult for you to pursue your passion ड्रीम्स late. और पैशन। So just go ahead, do it. एक्चुअली कई बार क्या होता है कि जब आप सोचते हो कि बाद में करेंगे तब तक आपका पैकेज ज्यादा बढ़ जाता है, फिर आपको लगता है कि अब छोड़ना भी सही नहीं। हाँ, मतलब आपके एक तो वो है ना, आप शादी कर लेते हो, आप फिर 27 28 की एज में तो आपका पैकेज भी कम रहता है, तो आप उस टाइम फिर भी कर लो। पेरेंट्स पेरेंट्स की एज होने लगती है, तो हम्म, धीरे धीरे मतलब विद दैट कि आपको लगता है यार कि मतलब हाउ कैन यू लीव योर, लेटर इन लाइफ यू विल सी, हम्म, you just cannot leave your family behind, you cannot leave your parents behind. So those things, when do as soon as possible. If you have to take risk, राइट। do some financial commitment, spend some money, do it as soon as possible. Take loans, do whatever, but मेरी भी यही फाइंडिंग है कि अगर आपको कुछ करने की इच्छा है तो आप उसी टाइम कर लो, ज्यादा मतलब एक चांस ले लो। no, that's गिव टाइम बाउंड डिसीजन 2 years मे बी, बट यू शुड ट्राई। right. और मतलब इसी नोट पे बता, आई ने नोट से कि कभी भी मत करो अभी। यू सेड स्पेसिफिकली 15-20 साल पहले वाले अर्पित या टू गिव अ मैसेज टू अस, बट आई स्टिल से कि वॉट एवर वी कैन डू टुडे वी शुड गो अहेड एंड वी शुड नॉट राइट। डिलेइंग इट। सो एग्जैक्टली, अभी भी क्या हो गया, सही बात है, अभी भी थ्रू किया जा द सकता है। दिस, हम्म, जो करना है करिए, थिंग्स विल eventually may get more and more difficult with time. राइट, आई एग्री। नहीं, ये अच्छा है। Hmm. इस मेरे को भी लगता है जैसे कुछ ट्रैवलिंग गोल्स होते हैं, कई बार कुछ स्टार्टअप गोल्स होते हैं, कुछ राइटिंग का गोल होता है कि मैं कुछ ऑथर वगैरह बनना चाहता हूँ, या कुछ ये सब चीजें लोग नॉर्मली इग्नोर करते हैं। हम्म। हाँ भाई, हमें डर रहता है कि सेटल हो जाए यार, कि जैसे डर था राइट, कि यार शादी नहीं, राइट, राइट। अगर ये हाँ, शादी शादी से पहले कि शादी हो जाए, फिर हाँ, किड्स का जिम्मेदारी, फिर हाँ, पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी रहती है, ओल्ड एज में तो काफी कुछ रहता है। हम्म, ओके, तो ये है। इंटरेस्टिंग। हम्म। एआई यूज करते हो कुछ? हाउ यू सी एआई इन कमिंग इयर्स? एआई का डायरेक्टली मेरे जॉब में इतना यूज नहीं है, बट हाँ, हाउएवर व्हाट, कुछ ऐसी यार एक्टिविटी मुझे तो लगता है तुम्हारी जॉब में एआई का बहुत स्कोप है। को बहुत है। आई एग्री कि कई सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब प्रोसेस होती है, सो दोज आर रिपीटेड टास्क, दे हैव अ ऑटोमेट हाँ, ऑटोमेट हो सकता है। हाँ, there is, मतलब this is not directly related to my profile, but in banking in general, I am saying या कि इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री और correct, व्हाटएवर। there is a step of act means steps of activities that need to be performed one after the, and all these things, मतलब what can be automated using AI and in fact can be improved। एक very simple सा कि जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट से डेटा उठा के आप फाइनेंशियल मॉडलिंग बनाते हो, डेट नंबर्स उठा के आप प्रोसेसिंग करते हो, और फ्यूचरिस्टिक किसी कंपनी का आपको मान लीजिए प्रेडिक्ट करना है, हाउ वुड द कैश फ्लो बी, हाउ वुड द कंपनी बी डूइंग फ्यूचर, तो करंट और हिस्टोरिकल नंबर्स उठा के एक सेट ऑफ मॉडल्स में रन करके प्रोजेक्शंस निकालते हो, राइट? तो वो चीजें एक टेम्पलेट
रहता हर टेम्पलेट में रिपोर्ट आती है, नंबर्स उसी टेबल्स में, उसी शेड्यूल्स में आते हैं। तो यूजिंग एआई उस सब को आप ऑटोमेट कर सकते हो। और वो भी, राइट। और जैसे कि और भी एक्टिविटीज हैं, जैसे आप, मैं रिस्क फील्ड में हूँ तो कई जगह रजिस्टर करके एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाके उनसे पूछो कि क्या रिस्क हैं उनके। तो ये सारी चीजें कि अगर आप एआई में ढूंढो, मैं कभी कभी ढूंढता हूँ, गिव मी टॉप रिस्क फॉर दिस डिपार्टमेंट या फॉर द फलाना बैंक, हम्म। तो एआई में तुरंत आ जाता है, मच बेटर। मतलब यू कैन देन यस। यूज इट एज अ बेस टू ऐड योर ओन इनपुट्स यस। ऑल्सो। तो या आई थिंक एआई में जो स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज है, डेटा क्लीनिंग हो जाती है आपकी, हम्म, और मे बी इट कैन फ्लैग द एरर ऑल्सो इफ देर इज सम इशू इन योर डेटा, इट कैन फ्लैग इट। हम्म। तो मुझे तो लगता है ट्रिमेंडस पोटेंशियल है, और आगे चल के इट विल चेंज द वर्ल्ड। That this is one of the, I think, revolutionary technology that is coming. हम्म। ये Job. तो बिल्कुल 100 years वाली टेक्नोलॉजी है, जो 100 years में जैसे कोई एक नई टेक्नोलॉजी आती है वो पूरी वर्ल्ड को चेंज कर देती है। जैसे स्टीम इंजन आया था, या कार का इन्वेंशन हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था। सो Hmm, दैट इम्पैक्टेड ह्यूमन काइंड। आई कंपेयर एआई विद दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल। hmm, possibly, yeah. हम्म। फर्क तो है, yes. आई एम राइटिंग वन बुक ऑन दिस, सप्लाई चेन, ट्रांसफॉर्मिंग सप्लाई चेन विद एआई। Okay. अच्छा. It's about to, maybe in next 2-3 months, it should get published. So मैंने थोड़ा एआई में जो रिसर्च किया है, आई थिंक इट्स अमेजिंग मीन्स। और सबसे ज्यादा मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि इंडिया जैसी कंट्री को बहुत बेनिफिट होगा। अच्छा. क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत चीजें अनऑर्गेनाइज्ड है। हम्म. एआई क्या है ना, हर चीज को ऑर्गेनाइज कर देता है। अगर एआई को आप डेटा दे दो, कुछ भी दे दो आप, उसको हम्म. वो आपको बता सकता है कि यू कैन डू दिस इन ए ऑर्गेनाइज मैनर। तो हम्म. सिटी प्लानिंग है, हेल्थ केयर है, और मतलब जितना, क्यों इंडिया में तो ह्यूज पॉपुलेशन है, तो डेटा भी उसी लेवल का है, और हर चीज अनऑर्गेनाइज भी रही है स्टार्टिंग से। डेवलपिंग नेशन है। तो हम्म. डेवलप्ड नेशंस तो काफी फिर भी ऑर्गेनाइज है, जैसे आप स्विट्जरलैंड हो गया, या इवन यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। बट इंडिया में तो, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको बहुत, is already India is among the top three nations of using AI aggressively, means एक चीज का थोड़ा सा काफी लोगों में फियर भी है, आई डोंट नो हाउ इट विल गो, बट लोगों को लगता है कि जॉब लॉसेस होंगी काफी हम्म. एआई से, क्योंकि ऑटोमेशन तो है एआई में काफी तगड़ा। हम्म. तो इट विल इम्पैक्ट लॉट्स ऑफ जॉब्स एंड प्रोबेबली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट विल क्रिएट न्यू स्ट्रीम्स ऑफ जॉब्स। हाँ, मतलब जैसे पहले हम्म। अकाउंटेंट मैनुअली हम्म। बुक में अकाउंटिंग करते थे, फिर टैली आ गया, ये सब आ गया, तो हाँ 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 हाँ, धीरे, एग्जैक्टली। तो नई जॉब्स आईटी सेक्टर सब। जॉब्स कट डाउन होंगी। बट एक हम्म। चीज कहना चाहूंगा ऋषभ की, सिंस यू मेंशन दिस, की एआई के थ्रू हम इंडिया के जैसे कंट्री का तुमने एग्जांपल लिया कि इतना अनऑर्गेनाइज्ड है सेगमेंट, तो एआई की का यूज करके चीजें मतलब एफिशिएंट बना सकते हैं। बट जो डेटा है, जो प्रोसेसिंग, जो एआई विल फीड ऑन डेटा, तो जो डेटा की प्राइवेसी है, आ, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा जो रिक्वायर्ड होगा, जो प्रोसेस होगा, हम्म। दैट पोज अ रिस्क अगर हम्म। सारा एआई के हम्म। थ्रू हो रहा इसमें, या यू आर राइट, इसमें इवॉल्विंग दो चीज एक साथ आ रही है। एक तो ये कि ये तो इवॉल्विंग फील्ड है, तो प्रोबेबली देयर विल बी सम मीडियम विच विल बी कॉन्फिडेंशियल डेटा विल बी ओनली इन द सिक्योर चैनल। है। जैसे मतलब एक कंसेप्ट आ रहा है कि एआई ऑन मोबाइल, तो आपका डेटा मोबाइल में ही रहेगा, ओके. जो प्रोसेसिंग होगी वो मोबाइल में होगी। अच्छा. तो एक चीज है, दूसरा क्या है कि एक रिस्क ये भी है कि एआई इतना ज्यादा इवॉल्व हो जाएगा कि वो खुद से ही कुछ ना कर डाले। हम्म. हम्म.
तो ऐसा कह रहे हैं कि रोबोट्स वगैरह में अगर एआई लगा दिया आपने मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में, वो खुद से ही मतलब इट गोज बियॉन्ड योर कंट्रोल। अच्छा, टर्मिनेटर मूवी। टर्मिनेटर मूवी, टर्मिनेटर। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, इट्स फैसिनेटिंग एक्चुअली। हम्म। आज से मे बी 2 इयर्स 3 इयर्स पहले कोई सोच नहीं सकता था कि ये सब चीजें इतनी जल्दी आने वाली है। हाँ मतलब इट्स इवॉल्विंग एट इसने तो बिल्कुल बहुत ही तेजी से ला दिया। चलो, मैं तो थोड़ा सा एआई की बात करना चाहता था। तो आई हम्म। थिंक दैट्स ऑल। आई थिंक फिर कनेक्ट करते हैं कुल्लर भाई, मिलते हैं। तुमसे एक सऊदी आके तो मिलना थोड़ा मुझे इजी लग नहीं रहा है, दुबई उबई में मिलते हैं। दुबई में मिलते हैं, मैं इंडिया आऊंगा, इंडिया में मिलते हैं। हाँ तुमने कुछ बोला था कि यंगर जनरेशन को मैसेज देना है। हाँ हाँ। बट व्हाट्स योर मैसेज? हाँ लेसन्स, एनीथिंग, लाइफ लेसन्स, वॉट एवर इट इज। मतलब since this is through your channel, I would like to convey me. There's no direct message as such, but what I would like to suggest is few habits which they can develop. मतलब can राइट। be help you be a more organized uh, individual, maybe more successful as well, happier person. मतलब पहला तो मुझे लगा कि यार हेल्थ एंड मींस मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ गो हैंड इन हैंड। तो जब तक आप यंग हो 25 30 35 तक तो योर आप कुछ भी खाओ पियो, योर फिजिकल हेल्थ does not impact your mental health. But as you turn 35, आपको अगर अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं रखोगे, इट विल इवेंचुअली स्टार्ट impacting your mental health, and then as a result your यस। personal life, professional life. So I think हमेशा अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए. Try to maybe develop some habit like small jogging, walks, meditation, आई whatever. थिंक इट्स अ Try. वेरी गुड पॉइंट। मैं कई वीडियोस में मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किया कि हेल्थ का ध्यान आपको आफ्टर 35 स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ 30 के बाद से, मतलब अवेयरनेस है नहीं लोगों में। हाँ, वही हैबिट एंड रहती तो लोग सडनली जब उनको रियलाइज होता है कि अभी तो मतलब बॉडी पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो हैबिट नहीं रहती कि वो खाना अच्छा खाना है या कुछ एक्सरसाइज करनी। इतने बिजी हैं हम अपनी लाइफ में। ऐसी कोई एजुकेशन हमें, मतलब हमारे टाइम पे तो थी भी नहीं कि आप फूड को किस तरह देखना चाहिए, प्रोटीन क्या है और फैट क्या है और कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। ये सब का कोई एक फिनेंशियल एजुकेशन भी लोगों को नहीं दी जाती है कि हाउ यू शुड मैनेज योर लोन्स एंड ऑल लाइफ में। हाँ मतलब वही है अभी। ये भी है कि जैसे हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि टेक रिस्क, इफ यू हैव टू टेक अ लोन, टेक इट। हम्म। हो जाएगा, द थिंग्स विल गेट सॉर्टेड फॉर यू, सो डोंट वरी। रिस्क लोगे या एटलीस्ट, समथिंग विल वर्क आउट। मतलब बी पॉजिटिव या एंड और यही है कि यार मतलब आप एक्सरसाइज करो, मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ ध्यान रखो। ट्राई टू ब्रिंग सम डिसिप्लिन इन योर लाइफ। मतलब हम्म ऐसे कई बार क्या होता है ना, हम लोग वी जस्ट गो अलोंग विद लाइफ। हम्म सोते हैं, उठते हैं, पार्टी करते हैं, फिर 5 दिन मेहनत करते हैं, फिर पार्टी करते हैं। मतलब पता ही नहीं चलता टाइम कैसे इज गोइंग अवे। राइट राइट। पास आई तो आई एग्री। कोई ऐसी एक्टिविटी ज्वाइन कर लो, कोई क्लब ज्वाइन कर लो जहाँ पे आप कहीं किसी तरह एंगेज हो। मतलब जैसे आप कई बार स्टार्ट क्लब वगैरह से, कुछ भी क्लब, एक्स्ट्रा हेल्थ से रिलेटेड क्लब, या कोई भी परफॉर्मेंस ड्रामा वगैरह, कुछ एक्टिंग हम्म रिलेटेड, wherever you think you can, you enjoy, join some of that to bring some discipline. I mean, there should be some alternative to your profession. कभी आपको प्रोफेशनल लाइफ में लगे कि यार देयर आर डिफिकल्ट डेज, देयर आर इजी डेज, ऑफ कोर्स। तो डिफिकल्ट डेज आते हैं तो आप स्ट्रेट होने की जगह यू विल हैव सम अदर थिंग टू लुक फॉरवर्ड, कि अच्छा चलो एटलीस्ट मैं इस डायरेक्शन
में तो अच्छा कर मैं अपने हम्म, यू विल हम्म। फील कि चलो मेरे को आज गिटार प्रोग्राम किया या मैंने एक्टिंग में इतना आगे बढ़ गया। यस, यस। तो एक मतलब इट आल्सो कीप्स यू काम मुझे लगता है। अगर आप हम्म। एक और चीज मैं बोलूंगा गुड हैबिट मुझे लगती है जर्नलिंग। इफ यू ओह यस, यस। इफ यू कैन डायरी राइटिंग। दिस कैन बी अ वेरी मतलब राइट डाउन योर थॉट्स क्या करना है क्या कैसे करना है ओके। गोल्स नियर टर्म गोल्स लॉन्ग टर्म गोल्स वो भी अगर करो तो मतलब दीज आर सम So हैबिट्स this is, अच्छा यू डू इट जनरली yeah, yeah, I am very much regular with that. I will show you I have to take suggestions from you how to do it. all this current What to daily, write there so that it's all if those upload habits it means to I someone have to make sure what is going on. हाँ इसलिए क्योंकि if you And write if actually research based habit means I adopted it very early age, but whenever I read some motivational book, उसमें भी यही लिखा जाता है कि डायरी राइटिंग जर्नलिंग मीन्स इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैबिट कह सकते हो कि इट हेल्प्स यू इन योर थॉट प्रोसेस। तो बहुत सालों से कर रहे हो क्या ये मतलब यू बीन डूइंग दिस हमें काफी सालों से है, बस ये कि बीच बीच में वो हो जाता है, ब्रेक लग जाता है बीच बहुत बीच में, मोटी लेकिन है मेरी काफी पहले से, तो 20 ईयर्स से है। मोटी बढ़ गई होगी तो ऐसे लिस्ट हाँ हाँ, पूरा प्रॉपर ढेर सारी डायरीज है। अच्छा मुझे तो उल्टा आई फील अनईजी अगर मैं नहीं लिखता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज है पर एक चीज बताओ ऐसी चीजें भी तो लिखते हो कि किसी और के हाथ में चला जाए तो मान लो ये प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ, एक गर्लफ्रेंड तो इसी बात पे छोड़ दी थी हाँ कि हाँ मैंने डायरी में लिख दिया था कि कुछ तो लिख दिया था, उसने पढ़ लिया और फिर छोड़ दिया। तो ये एक रिस्क है फिर कैसे करते हो मतलब लॉक मेरा तो कोई नहीं यार, लॉक लॉक वाली डायरीज आती हैं, दैट्स व्हाई देयर आर सम डायरीज कमिंग विद लॉक आल्सो। अच्छा या आप छुपा के रख लो या लॉकर में रख लो, आई डोंट नो, अगर आपको अपने वाइफ से छुपाना है तो। अदरवाइज तो डायरी में तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं अब एक चीज बट बता डायरी इज एक्चुअली वेरी पर्सनल थिंग। मतलब आप किसी को, कोई आपकी डायरी एक्सेस करके काफी कुछ जान सकता है आपके बारे में। हम्म, तो अभी मतलब सिंस दिस अभी चीजें चेंज हो गई क्या कंप्यूटर पे भी जर्नलिंग होने लग गई राइट ये एप्लीकेशन मतलब मैं थोड़ा ओल्ड ओल्ड थॉट प्रोसेस का आदमी हूँ। बुक भी मुझे मैनुअल पढ़ने का मन करता है, मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ता, किंडल वगैरह। और ये फिजिकल कॉपी। और डायरी भी मुझे फिजिकल, वो जब आप पेन से लिखते हो ना, ये साइंटिफिक भी है थोड़ा कि इट इट योर माइंड कैप्चर। हाँ यही मैं पूछना चाह रहा था कि वो जो फील आनी चाहिए वो दैट में कम थ्रू नहीं, ओनली इट हेल्प्स मी इन इवन राइटिंग द बुक्स आल्सो, बिकॉज मैंने डायरी में काफी कुछ लिखता हूँ मैं, थॉट प्रोसेस, देन ओनली आई चैनलाइज देम इनटू बुक्स। आई हैव टू कनेक्ट विद यू हाउ टू राइट अ जर्नल एंड मतलब मुझे ये अच्छा। हाँ, ये एक्चुअली यू आर राइट, प्रोबेबली मेरे लिए थोड़ा इजी हैबिट है, मतलब मेरे को नेचुरल आता है। लेकिन जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे जिम में नेचुरली फील करते हैं कि जिम गए, और हम्म मेरे से कोई कहे जिम जाने को, तो मेरे को बहुत दिक्कत होती है कि यार जिम कौन जाएगा। एक साल के एनुअल फीस दे के आ जाते हैं और फिर एक हफ्ते बाद बंद। हो चुका है मेरे साथ भी हुआ है अरे हो चुका है, लगातार होता है, हर बार होता है। एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। हम्म तो, तो अच्छा है, आई थिंक बहुत बढ़िया है। अभी एक बुक आने वाली मेरी, माई 50 अरेंज मैरिज डेट्स, उस हाँ पे पूरा ये सब थॉट प्रोसेस जो सब हम लोग देखते थे शादी आदि का, वो भी रखा माय है, देखते हैं। माय माय 50 अरेंज मैरिज डेट्स हाँ अच्छा तो 50 डेट्स ये है क्या तुमने हाँ, मैंने तो किया था। 50 हम लोग याद है मुझे बहुत उन दिनों बाद 50 नहीं तो मतलब अब तो इतना काउंट डाउन याद नहीं है, लेकिन मैंने उसमें 15 चैप्टर्स लिखे हैं। लेकिन द थॉट इज कि हाँ, 50 टाइप का हो गया था काउंट। सब मतलब अलग अलग टाइप की लड़कियों से मिले क्या हाँ वो हाँ, टाइप की यूनिक एक्सपीरियंसेस, बट इफ आई फिल्टर डाउन, अगर एआई की तरह उसको एनालाइज करूँ, तो काफी चीजें तो सेम ही होती हैं एट द एंड।
मतलब वो कॉमन ही हो जाता है। I'll wait for that. हाँ, तुम आई विल सेंड यू वन कॉपी। सऊदी में तो यहीं से कुरियर करना पड़ेगा। प्रूफ रीड करने के लिए पहले ही भेज दो मुझे। नहीं, दैट बुक हैज गॉन फॉर अंडर पब्लिशिंग। ऑलरेडी अंडर पब्लिशिंग। हाँ, अब थोड़ा टाइम लगता है पब्लिशिंग में भी, 1 महीना 2 महीना लग जाता है डिजाइन और वो सब में। सही है भाई। तो दिस इज योर सेकंड बुक, एक आने वाली है एआई इन सप्लाई चेन। हाँ, that is more relevant to our education and industrial experience corporate. But this is a personal side. That is professional. गुड गुड। चलो फिर कुल्लड़ भाई, मिलते, हाँ कनेक्ट करते। बिल्कुल एक दो ऋषभ। बार फिर से मेरे चैनल में आना, बाद में फिर से आते। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। आई आई एंजॉयड दिस चलो भाई, थैंक्स, बाय। interacting with you through this. Bye bye. चलो, बाय।